Hello students, in my previous video I have taught you the economic planning, goals of 5-year plan and the critical assessment of 5-year plan. In this video, we will study the features of Indian agriculture, importance of Indian agriculture and the problems of Indian agriculture. But before that, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload the new video, you'll get the notification. Let's start the session. We all know agriculture plays a pivotal role in Indian economic development. When I say India plays a pivotal role in India's economic development, what it means that India plays a very important role in India's economic development. It is a major source of livelihood for the people and the important source of income for the economy. During the colonial rule, there was neither growth nor equity in the agriculture sector. The policy maker of independent India had to address these issues. So what it means that we have seen at the time of the independence, what is happening? The British rule has totally ignored agriculture sector. They were not paying attention. So because of which what happened? In the previous chapters we have seen the condition deteriorated. So after the 5-year plan, it is being decided that we have to pay attention for the upliftment of agriculture sector. Now let us discuss the features of Indian agriculture sector so that the things become much more clear to us. The first feature is that we will discuss is low productivity. Second feature is disguised unemployment. Third feature is dependence on rainfall. Fourth, subsistence farming. Fifth, lack of modern inputs. Sixth, small holdings. Seventh, backward technology. Eighth, landlord-tenant conflicts. You can see all these things on the screen itself. Now let us discuss all these points one by one. The first feature is low productivity. Productivity means output per hectare. The major productivity of crops are lower in India comparing to world's best practice. This low productivity is one of the reasons for slow growth of industrial sector. It means that, listen, if we have to measure the productivity, so productivity means what? It means how much output we get on a particular piece of land. That particular piece land will be in 1 hectare how much output we are getting. भाई 1 हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. अगर 1 हेक्टर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, वी आर गेटिंग मोर प्रोडक्टिविटी, इट मीन्स दैट द प्रोडक्टिविटी इज गुड. एंड रिमेंबर वन थिंग, प्रोडक्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है. बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी, जब प्रोडक्टिविटी लो होगी, सो व्हाट विल बी द आउटकम? द प्रोडक्शन विल डेफिनेटली बी लो. When the production will be low, what it means? It means that the agriculture sector will not be in the position to provide the required raw material to the industries. Agriculture sector industries को raw material नहीं दे पाएगा. When the agriculture sector is totally unable to provide the raw material to the industrial sector, what will happen? The industrial production will also fall down. जिससे industrial production भी कम हो जाएगा. So that was one of the feature for the low productivity. I think the feature might be clear. The next feature is disguised unemployment. See, it is a situation where more number of people are employed than actually needed. Their presence is not making any difference in the production activity. It is also called hidden unemployment. Listen, when we are talking about the disguised unemployment, what means that more and more people are doing the job on the piece of the land. We have seen in our agriculture, that is very common in the agriculture practice, all the family members are contributing, they are joining hands and they are doing the production collectively. You really feel that their presence will make any difference in the production? Answer is no. देखो, अगर हम लोग खेती बाड़ी की बात करते हैं तो what is happening? सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स खेत में काम कर रहे होते हैं. काम है एक बंदे का और काम कर रहे हैं 5 या 6, मे बी मोर. उनकी प्रेजेंस से क्या प्रोडक्शन बढ़ा? आंसर इज नो. अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, उसे हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट से अधिक लोग काम कर रहे हैं, उसे हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं.
और इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट जो छुपा हुआ है। अगर हम लोग दूर से देखेंगे यार, घर के सारे बंदे खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, कोई अनएम्प्लॉयड ही नहीं है, कोई खाली नहीं बैठा हुआ, तो लगेगा सारे के सारे जॉब पे हैं भाई, इसलिए हम उसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट दिख नहीं रहा। ठीक है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हम लोगों ने अभी देखा। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। एंड रिमेंबर वन थिंग, द डिस्गाइज एंड एम्प्लॉयमेंट ओनली बीइंग फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, और डिस्गाइज एंड एम्प्लॉयमेंट बताता है कि दैट वी पीपल आर बैकवर्ड एंड पॉवर्टी इज प्रिवेलिंग इन द कंट्री। क्लियर? लेट अस डिस्कस द थर्ड फीचर, दैट इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। वी ऑल नो, आज के टाइम में बात करते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन यानी 66.1% डेटा के अकॉर्डिंगली 66.1% ऑफ द एग्रीकल्चर एरिया, क्रॉप्ड एग्रीकल्चर एरिया यानी वो एरिया जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, स्टिल डिपेंड ऑन रेनफॉल। इफ़ वी आर लकी टू गेट द गुड मानसून, द प्रोडक्शन विल बी वेरी गुड, एंड इफ वी आर नॉट लकी देन वी विल बी डिप्राइव विद द गुड प्रोडक्शन। मॉनसून अच्छी हुई, खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। मॉनसून अच्छी नहीं हुई तो हम लोग खेती बाड़ी अच्छी नहीं दे पाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। द नेक्स्ट फीचर इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लिसन, अगर हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इट मीन्स व्हेन वी आर डूइंग द फार्मिंग फॉर आवर ओन कंजम्पशन, जब हम लोग खेती बाड़ी खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मेन रीजन क्या है? द मेन reason is that we are not having the larger piece of land with us. If we are having a larger piece of the land, it means that after meeting out our own requirement, we are in the position to go and sell the food item to the people. लेकिन अगर हमारे पास कल्टिवेबल एरिया बहुत छोटा है तो हम लोग उतनी खेती बाड़ी कर सकते हैं जिसमें अपनी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर पाए। तो इंडिया में क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेटा 0.7% लार्ज लैंड होल्डर, अगर हम लोग कंट्री में लार्ज लैंड होल्डर्स की बात करते हैं तो कितने परसेंट लार्ज लैंड होल्डर्स हैं? 0.7%, यानी 99.3% स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं। और जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं उनके पास कितना एरिया है टोटल कल्टी क्रॉप्ड एरिया का? 10.5% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया दे वर हैविंग इट। यानी सिर्फ टोटल क्रॉप्ड एरिया का 10.5% में कमर्शियल फार्मिंग होती है, बाकी रिमेनिंग 89.5% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया the farmers are doing the cultivation for their own subsistence. That is also the one important feature. Next है lack of modern inputs. Listen, when we are talking about the modern inputs, it means are the farmers be in the position to use latest tools? Are the farmers be in the position to use threshers, insecticide, fertilizer, tractors and so on? Till date, farmers are using the same old outdated methods. वही बुलक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वही खाद यूज़ कर रहे हैं, वो कोई लेटेस्ट फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव द मनी, और इफ़ दे हैव द मनी दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। दे आर नॉट गेटिंग द ईजी अवेलेबिलिटी, या पता ही नहीं है कैसे करना है। द नेक्स्ट फीचर इज स्मॉल होल्डिंग्स। लिसन, व्हेन आई से स्मॉल होल्डिंग्स, इट मीन्स दैट द पीस ऑफ द लैंड विच इज बीइंग पुट अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया, द पीस ऑफ द लैंड विच इज बीइंग पुट अंडर कल्टिवेशन इज़ वेरी स्मॉल। यानी जो खेती बाड़ी का एरिया है वो बहुत छोटा है। जैसे हमने देखा अभी 99.3% आर स्मॉल, मीडियम एंड द स्मॉल साइज होल्डिंग्स। अब मीडियम और स्मॉल साइज होल्डिंग पे जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी। द क्वेश्चन इज वाई ऑन द मीडियम एंड स्मॉल साइज होल्डिंग वी आर हैविंग लो प्रोडक्टिविटी, वी आर गेटिंग लो प्रोडक्शन। अब रीजंस आर टू। पहला, आर वी इन द पोजिशन टू यूज द मॉडर्न मेथड्स? भाई छोटे से एरिया में क्या ट्रैक्टर चला लोगे? द क्वेश्चन इज इट इज इम्पॉसिबल। सेकेंड इज कैन वी गो फॉर द कमर्शियल फार्मिंग ऑन द स्मॉल पीस ऑफ द लैंड? आंसर इज नो। भाई हम लोग उस स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे क्या करेंगे? यानी किचन गार्डन का ही काम करेंगे। ट्रैक्टर तो यूज़ कर नहीं सकते, प्रोडक्शन भी लो ही होगा। ये फीचर है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। लेट अस सी द सेवंथ फीचर, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। मोर और लेस वी हैव कवर्ड इट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट टिल डेट वी आर मच मोर रिलाइंग ऑन द कैटल पावर एंड द मैन पावर। आज के टाइम पीरियड में भी हम लोग बैल को यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग खुद हाथों से खेती बाड़ी कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग ट्रैक्टर्स, वी आर नॉट यूजिंग द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव द मनी और वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट, और वी हैव सीन अर्लियर स्मॉल होल्डिंग्स। नेक्स्ट फीचर इज लैंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स।
अब सब कुछ सही चल रहा था, लैंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट ने तो कंडीशन और ख़राब कर दी। ह्यूज एरिया आर कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स। अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर एरिया जो इंडिया में है इट इज़ बीइंग कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के ओनर तो है नहीं, बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज इंजॉयड बाय द ओनर्स। लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा वो सारा का सारा ओनर लेके चला जाता है। एंड द टेनेंट्स ऑफन गॉट बेयर मिनिमम, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कि बट्टे पे दे दिया, समथिंग लाइक दैट। टेनेंसी रिफॉर्म इंडिया में हुआ, बट 4% ऑफ द टोटल ऑपरेटेड एरिया इन द कंट्री इंजॉय द बेनिफिट। द रिमेनिंग 96% इज टोटली डिप्राइव्ड बाय द बेनिफिट्स ऑफ द टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स हुए, लेकिन उसका बेनिफिट मिला ही नहीं। 96% तो एरिया जो है वो वहीं का वहीं है, पुरानी हालत में ही। आई होप द पॉइंट माइट बी क्लियर टू यू। सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से स्क्रीन पे देख लेते हैं। लेट अस सी द पॉइंट्स विच वी हैव सीन, फीचर्स विच वी हैव सीन। द फर्स्ट फीचर विच वी हैव सीन वाज लो प्रोडक्टिविटी। देयर वी हैव सीन दैट द प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी। भाई हमने देखा था कि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन क्या है। सेकंड फीचर विच वी हैव सीन वाज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हमने देखा था कि अगर ज़्यादा लोग खेत में काम कर रहे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन तब भी काम कर रहे होते हैं, उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फीचर। द थर्ड पॉइंट वी हैव सीन दैट स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। 66.1% still cropped area still depends on rainfall. Fourth point, we have seen subsistence farming. What it means we are doing the cultivation for own consumption, not for commercial purpose. The next is lack of modern inputs. We have seen that till date we are not using chemical fertilizers, insecticide, pesticides. Why? Because of which the production is very low. Sixth point, we have seen that small holdings. It means that the piece of the land which the farmers are having is very small, because of which modern method of farming is impossible. Modern method of farming के अंदर क्या आता है, इसका मतलब मशीन्स यूज़ करना। दूसरा होता है कमर्शियल पर्पस के लिए खेती बाड़ी करना। Why? Because the small holdings are there. Next feature we have seen that the backward technology. What is backward technology? Outdated technology. Still we are relying on the bullocks. We are relying on we are sowing the fields by the use of our own hands. We are not using the tractors and all. Next we have seen landlord tenants conflicts. It means that the area is being cultivated by the tenants, but they are not getting the amount according to their contribution. So the conflict is going on. So these are the features which we have seen. Now let us discuss the importance of agriculture sector. Listen, अगर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को देखना है तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि 5 और 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स हम लोग लेके चलते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज वाई द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू GDP. So we can't ignore the importance of the agriculture. The question is how much agriculture sector contribute to the GDP. Agriculture sector से GDP में contribution आता है 17.4%. So it is very important source. भाई अगर 10% से ज़्यादा भी contribution कहीं से भी आता है, it becomes a important source. So we can't ignore the importance of agriculture sector. Second important point is it's a source of employment. Remember one thing, 49% of the people still depend on agriculture sector. कितने लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं? 49%। अगर 49% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं तो इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर 49% लोगों को जॉब दे रहा है। कैन वी थिंक ऑफ इग्नोरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर? आंसर इज नो। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट सपोर्ट 49% ऑफ द पॉपुलेशन. इट प्रोवाइड फूड टू द 49% ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स. एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल because it meet out the food requirement of the people. एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जो लोगों की फूड रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तो यहाँ पे सारे का सारा जो फूड शॉर्टेज हो जाएगा. एंड टू मीट आउट द फूड शॉर्टेज वी हैव टू इम्पोर्ट द फूड आइटम फ्रॉम फॉरेन कंट्री. दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ेगा. एग्रीकल्चर लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. इंडस्ट्री ज़्यादातर आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती हैं. हाउ द इंडस्ट्री टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर? बिकॉज इंडस्ट्री नीड रॉ मटेरियल. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. क्या चाहिए? कॉटन. कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर. जूट इंडस्ट्री क्या चाहिए? जूट. कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एग्रीकल्चर प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. If the agriculture sector will flourish, definitely the industrial sector will also flourish. फिफ्थ इंपॉर्टेंस देखते हैं मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अगर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स आर डिमांडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, दे आर डिमांडिंग पेस्टिसाइड्स, दे आर डिमांडिंग ट्रैक्टर्स, दे आर डिमांडिंग पंप्स एक्सेट्रा.
because of the requirement of these things, the industries or the factories related with these products will also flourish, yes or no? Answer is yes. So we can say that agriculture sector supports the industrial products. If agriculture sector will fall down, definitely the industries which manufacture agriculture related product will also fall down. So it support the industrial sectors as well. The next importance is share of in exports. देखो इंडिया में अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, टी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, और बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा, वी आर गेटिंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसीज. और फॉरेन करेंसीज हम लोगों को पता है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री की बैक होती है. सो एग्रीकल्चर सेक्टर्स brings foreign exchange in our country, which is very good for the advancement development of the country. Next importance is source of revenue. Agriculture sector state government को revenue provide करता है. If the agriculture sector will fall down, then definitely the revenue will fall down. When the revenue will fall down, then the central government and the state government will not be in the position to meet out their daily work. वो अपना काम नहीं कर पाएंगे. कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर रेवेन्यू प्रोवाइड करता है? वी हैव सीन दैट लैंड रेवेन्यू इज़ बीइंग इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. भाई अगर लैंड रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को स्टेट एग्रीकल्चर सेक्टर से. दूसरा क्या होता है कि सर्विस टैक्स हो गया. किसान जो सामान खरीदता है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स खरीदता है, पेस्टिसाइड खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, सब पे सर्विस टैक्स फार्मर्स पे करता है या जीएसटी पे करता है. ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का सोर्स है. फाइन. अगर हम लोग रिवेन्यू की बात करें, वी कैन से वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ द रिवेन्यूज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो ये आपका जो रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास पहुंचता है वो टैक्स के तौर पे पहुंच जाता है. अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखा, भाई इंपॉर्टेंस को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं. वाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी. इट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. थर्ड, इट सप्लाई फूड ग्रेन्स टू द पीपल. इट सप्लाई रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज. इट इज़ द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. It has the share in the exports. It is an important source of revenue to the government. अब इन पॉइंट्स के ग्राउंड पे हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी कांट इग्नोर इट. नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम विच द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फेसिंग. अब देखते हैं भाई अगर फ़ायदे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ ही रही होंगी. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स विच द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फेसिंग. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन. हमारी इंडिपेंडेंस को इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी 66.1% of the cropped area is dependent on monsoon for irrigation purpose. अभी भी हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है इरीगेशन के लिए. इट इज सीरियसली अ मैटर ऑफ वरी. द सेकेंड प्रॉब्लम इज डेफिशिएंसी ऑफ फिनेंस. डेफिशिएंसी ऑफ फिनेंस इज another major problem facing Indian agriculture. For the bulk of financial needs, the small farmers depend on non-institutional sources, including Mahajan, moneylenders, landlords, etc. They charge very high rate of interest. Institutional finance is extremely scarce. To reach to the extremely scarce. What it means? It means देखिए, अगर हम लोग फिनेंस की बात करते हैं तो आज के टाइम में हम लोग दो सोर्स होते हैं फिनेंस के. या तो हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर देयर, या हम लोग बोलेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करते हैं तो इसके अंदर बैंक्स आते हैं विच इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात करते हैं, इसमें महाजन, मनी लैंडर्स आते हैं विच इज़ नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. आज के टाइम में बहुत ज़्यादा किसानों को लोन की जरूरत पड़ती है. दे स्टिल रिलाई ऑन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. वाई? बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर वेरी स्केर्स. आज के टाइम पे भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स बहुत कम है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है. लेट इट डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कन्वेंशनल आउटलुक. कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लोगों की सोच क्या है. आज के टाइम में किसानों की सोच है वो ये है कि खेती बाड़ी करते हैं फॉर सब्सिस्टेंस पर्पस ओनली. उनके दिमाग में ये नहीं है कि हम लोगों को खेती बाड़ी करनी है फॉर कमर्शियल पर्पस. उनको ये नहीं पता कि प्रोडक्शन किस चीज़ का करना है, मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, उन्हें पता ही नहीं है. उनका ये होता है कि फूड आइटम्स या वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करो, कहानी ख़त्म. नेक्स्ट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स. अब स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स क्या है? होल्डिंग्स इन इंडिया आर ओनली स्मॉल. देखो इसका मतलब क्या हो गया कि होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल, सिर्फ छोटी नहीं है, इट इज़ स्कैटर्ड एज वेल. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हो गया कि एक बंदा है, उसके पास जो पीस ऑफ लैंड है वो कम छोटा तो है ही, लेकिन
एक बंदा है जिसके पास ज़मीन है, वो कुछ तो 1 किलोमीटर में है, यहाँ पे है, और दूसरा पीस ऑफ लैंड है उसका 2 किलोमीटर बाद, तीसरा है 1 किलोमीटर दूर। अगर ये सारे के सारे पीस ऑफ लैंड कलेक्टिवली हो उसके पास, यानी एक ही जगह हो, तो वो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग सोच सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन का सोच सकता है। लेकिन उसके पास जो एरिया है फॉर फार्मिंग वो स्कैटर्ड है, जगह जगह फैला हुआ है, जिसकी वजह से मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कर ही नहीं सकता। ज़मीन है लेकिन उसका बेनिफिट ही नहीं उठा सकता। क्यों? अगर ज़मीन एक ही जगह हो तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग पॉसिबल हो जाएगी उसके लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा अलग अलग जगह अगर फैला हुआ हो तो क्या करेगा बेचारा? कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? एग्रेरियन रिलेशन रेफर्स टू द बिजनेस रिलेशंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स डू नॉट डू फार्मिंग फॉर देमसेल्व्स but only rely on rental income. They charge exorbitant rent from the tenant, which has made their conditions worst. अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं इंडिया में कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो ओनर ही नहीं है, दे आर द लेबरर्स, और उनको हर महीने या जो टोटल उन्होंने प्रोडक्शन किया उसमें से पर्टिकुलर परसेंटेज देना पड़ता है, और जो पर्टिकुलर परसेंटेज है वो टोटल प्रॉफिट का कहीं कहीं 80% होता है, कहीं कहीं 70% होता है। यानी जो रियल में खेती बाड़ी कर रहा है उस बंदे को तो कुछ भी नहीं मिला, और जो ओनर है उसको अच्छा खासा मिल गया। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें वो लिख सकते हैं कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की मार्केटिंग की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट। आज के टाइम में भी फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर आउटपुट इन लोकल मार्केट एट अ रिड्यूस रेट। पता ही नहीं मार्केट में रेट क्या चल रहा है। दे आर ऑब्लाइज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द महाजन एंड मनी लैंडर्स। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि इन्हें जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया वो मजबूरी में लो रेट पे महाजन को या मनी लैंडर्स को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उन्होंने भैया लोन लिया हुआ उनसे। अब वो कहते हैं भाई लोन तो लिया है, हमें दे दो, अच्छा है। These are the problems which we have seen that the agriculture sector is facing. That's all we have in this video. I hope you enjoy the video. If you like the video, it's a request, please mention it on the comment box. Meet you soon with a new video. Thanks for watching. God bless you all.